Hello children, today I am going to start the exercise number 1.2 of your NCERT book, which is based on the topic real numbers. Okay, so see in exercise number 1.2, real numbers. There are two types, rational numbers and irrational numbers. Rational numbers are the numbers which can be expressed in the form of P upon Q, where both P and Q are integers, but Q is not equal to 0. For example, 2 upon 3, minus 4 upon 7, 2, 0, all are rational numbers, minus 7, because these 2, 0 and minus 7 can be written as 2 upon 1, 0 upon any number, minus 7 upon 1. Irrational numbers are those numbers which cannot be expressed in the form of P upon Q. Cannot be expressed. Okay. So, give the examples of irrational numbers, like the root of any non-perfect square numbers like root 2, like root 3. If you write root 4, you can get the value of root 4 is equal to 2. So this is called the rational number. But these types of number which are not the perfect squares, like root 6 also, are called irrational numbers. Okay. Pi is also an irrational number, but the approximate value of pi, that is 22 upon 7, is a rational number. तो पाई एक इरेशनल नंबर होता है, जबकि 22 upon 7 एक रेशनल नंबर होता है. क्यों? क्योंकि इसमें सारी प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर की आती हैं. देखिए, these numbers are written in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0. यहाँ पर 7 0 के बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर पाई जो होता है एक इरेशनल नंबर होता है. क्यों होता है ये हम डिस्कस करेंगे जब हम डेसिमल एक्सपेंशन बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में. रियल नंबर्स आर द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स कंबाइंड टुगेदर. जब रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स मिलते हैं, दोनों नंबर का जो फुल सेट होता है, इसे क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स होते हैं. तो हम कह सकते हैं ऑल द रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ऑल द इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, बट ऑल द रियल नंबर्स आर not only rational numbers, because they are irrational also, as well as all the real numbers are not only irrational numbers, because they are rational also. Okay, इस कॉन्सेप्ट पर हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2. Let's see in your books. The first question of exercise number 1.2 is state whether the following statements are true or false. Justify your answer. The first part is every irrational number is a real number. अभी आप सभी को बताया गया कि real numbers are of two types, rational or irrational. According to the first part, every irrational number is a real number. सारे irrational number real number के सेट में आते हैं. It is right, because all the irrational numbers comes in the set of real numbers. So the first part is true. Second one, every point on the number line is of the form root m, where m is a natural number. तो कोई भी नंबर लाइन पर जो पॉइंट होगा वो रूट m की फॉर्म में होगा, जहां पर m एक नेचुरल नंबर है. अगर फर्स्ट नेचुरल नंबर m इज इक्वल टू रूट 1 ले लेते हैं, तो रूट 1 की वैल्यू 1, तो बिल्कुल सही है. यहाँ पर नंबर लाइन पर 0 के बाद में 1 एक पॉइंट आ सकता है. अगर हम रूट m की वैल्यू लिख देते हैं 2, रूट 2 तो नहीं आएगा, रिप्रेजेंट नहीं होगा. रूट 4 इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, तो 2 रिप्रेजेंट हो सकता है. तो इस टाइप के जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं या नेगेटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं, उनके इंटीजर्स को हम रूट पर रिप्रेजेंट, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. सो इट इज फॉल्स. तो द सेकेंड पार्ट विल बी फॉल्स. द थर्ड पार्ट इज एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं. ऑल द रियल नंबर्स आर इरेशनल. दिस इज रॉन्ग, बिकॉज रियल नंबर्स आर रेशनल ऑल्सो. सो द थर्ड पार्ट इज फॉल्स. ओके, सी क्वेश्चन नंबर 2. Are the square roots of all positive integers rational?
इरेशनल, क्या हर एक पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल होता है? सी √4, √9, √16 दे ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स। और जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वी गेट द कंप्लीट आंसर एज 2, 3 and 4 दीज आर रेशनल नंबर्स। ये तो रेशनल है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बन गया। तो हम कह सकते हैं नो, ऑल द square roots of all the positive numbers are not irrational, as you see in the examples that √4 is equal to 2, √9 is equal to 3, √16 is equal to 4, √25 is equal to 5 and so on। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। In question number 5, you have to show that √5 can be represented on the number line। अगर यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होता है जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ नंबर लाइन, लेट A is the first point and C √5 here। We know that in a Pythagoras theorem the square of base and perpendicular is equal to the square of hypotenuse। ओके, तो ये नंबर जो भी आप रिप्रेजेंट करेंगे इसको हाइपोटेन्यूज के प्लेस पर मानेंगे पाइथागोरस थ्योरम में। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर? √5। √5 का स्क्वायर, यू नो दैट द स्क्वायर ऑफ √5 इज 5। तो 5 यहाँ पर किसका स्क्वायर करके आ सकता है? इफ वी डू द स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 1 we get 2 square is 4, 1 square is 1, both when we add both we get 5 and is equal to √5 का स्क्वायर। तो अगर हम बेस को 2 यूनिट्स मान लें और परपेंडिकुलर को 1 यूनिट मान लें तो हमें हाइपोटेन्यूज √5 मिल सकता है। यही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। लेट फ्रॉम A to B, B to C, लेट दिस डिस्टेंस इज ऑफ 2 यूनिट्स। अब यूनिट्स में आप इन्हें सेंटीमीटर भी एज्यूम कर सकते हैं या इंचेस भी एज्यूम कर सकते हैं अपने स्केल में। एंड लेट A to B एंड दिस इज B to C। B to C इज ऑफ 1 इंच। ओके, जब हमने दोनों यहां पर बेस और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए 1 और कितने इंच? 2 इंच। तो क्या काम करेंगे आप? नाउ ज्वाइन दिस बाय यूजिंग अ स्केल। ओके, ज्वाइन दिस। You know that in a right angle triangle, this angle is of 90 degree. This is of √5। ओके, तो इस √5 को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आपको एक कॉन्सेप्ट पता है सभी को? In a circle, all the distances from the center to the boundary are equal and they are called the radius. So, if we take this distance from A to C as the radius, we can draw the arc like this. We can draw the arc like this. So this is the arc. Let this point is M. Okay. So the distance from A to M will be represented as √5. So this is the representation of √5 on the number line. क्योंकि अगर आप इस √5 को देखते हैं और अगर हम इसको पूरा सर्कल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से तो क्या होगा? ये जो होगा एक तरह से ये रेडियस कहला रहा है यहां से तक। दिस इज कॉल्ड द रेडियस। तो रेडियस यहां हो या नीचे बेस पर हो तो इक्विवेलेंट रहेगी। इसीलिए ए से लेके एम तक की जो पोजीशन होगी वो √5 रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। ओके, in this way you have to do question number 3 in your fair notebook as well as the classroom activity number 4 you have to draw on the page and paste it on your fair notebook also। एक पेज पर आपको एक्टिविटी करनी है और इसके बाद आपको फेयर नोटबुक पे इसे पेस्ट करना है। एक्टिविटी में क्या करना है? एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, ए पॉइंट लिखेंगे, बी पॉइंट लिखेंगे, ए से बी तक का डिस्टेंस 1 यूनिट लिखेंगे, इधर 1 सेंटीमीटर और 1 इंच। फिर बी से 1 सेंटीमीटर और 1 इंच पे अगर आप ड्रॉ कर लेंगे लाइन 90 डिग्री पर तो दिस विल बी 1 and 1, दिस इज √2। ओके, फिर यहां पर आप रिप्रेजेंट करेंगे कितना? 1 ऑल्सो, ये हो जाएगा कितना? √3। तो 1 का तो ये रहा, √3 का ये आ जाएगा।
इसी तरह से आप 1 इंच एक्सटेंड करते हुए चले जाएंगे तो इस तरह का आपको एक स्पाइरल ड्रॉ हो जाएगा। तो ये स्पाइरल की एक्टिविटी आपको एक पेज पर ड्रॉ करनी है और फिर उसे बेस करना है अपनी लोड फॉर्मूला। In this way, this exercise number 1.2 is completed now. Thank you very much, students.